Bismillahirrahmanirrahim. This is Fayyaz Muhammad. Dear student, I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing the Advanced Web Application Development course, and this is our 13th lecture in this regard. Let's see what we are going to discuss in today's lecture. In today's lecture, following our learning objectives. We will start our today's session from flow control statement. Then we will check what are types of flow control statement. Next, we will discuss comparison operators and logical operators. Next, we will discuss Boolean expression, if statement, that is if else statement. Next we will discuss switch statement, and in the last we will discuss what are assemblies. Dear students, this is the summary of our last lecture. Program and statement, expressions, types of expressions, program common actions, types of statements, declaration statements, expression statement, and in the last we discuss flow control statement. And today we will also start from flow control statement. Dear student, following are the online resources that I have consulted in the preparation of these uh, lecture, and in the previous lecture I also consulted these resources. You are also requested, if you want to develop further concepts in this course, then you must consult these online resources. Let's start what we are going to cover in today's session. Dear student, as we are previously discussing organizational concepts in C sharp language, following are the five key organizational concepts in C sharp language. We have already covered program namespaces types, and in today's lecture we will cover assemblies, and the last organizational concepts members will be discussed in the next lecture. These are the fundamental elements of C sharp language, and uh, by the end of these lecture we will cover all these topics. Now the topic of today's lecture is flow control statement. C sharp provides following statements used to control the flow of execution in a program. As we have previously discussed, what are flow control statements? Number one, selection statement. These includes if, else, switch case. Next is iteration statement. These include do, for each, in, and while statement. Next, flow control statements are jump statement. These includes break, continue, default, go to, return, and yield. And in the last, exception handling statement. These are also flow control statement. These include through, try catch, try finally, try catch finally statements. In today's lecture we will cover selection statements. Before discussing selection statement, we will discuss what are comparison operator and boolean expression. In previous lecture we also discussed comparison operators, but for the sake of
completeness, in today's session, we will also discuss comparison operator. What are comparison operators? Comparison operators are also called relational operators. These are the operators that compare value, pair of value, and return the result of comparison in Boolean value, that is true or false. The comparison or relational operators include greater than, less than, greater, equal, less equal, equal, and not equal. Logical operators, operators that combine multiple Boolean expression or values and provide a single Boolean output, that is true or false. These operators include and, double ampersand is used to represent and operator. Next is two vertical lines. These two vertical lines are used to represent or, and sign of exclamation, this is used for not. लॉजिकल ऑपरेटर, अभी हम आगे देखते हैं कि इनको किस तरीके से हम यूज करेंगे. What are Boolean expression? Boolean expressions are relational comparison between numeric expression resulting in a value of either true or false. Logical expressions are fundamental part of control statement and are formed with combination of two kinds of operators. Number one is relational operator, which relates two expression of compatible types. Similarly, logical operators, which operates on logical operands. Comparison operator and Boolean expression example. First of all, let's see the comparison operator. These are the operator used to compare two values. Number one is equal to, double equal sign is used to represent equal to, sign of exclamation, and equal sign is equal is used for not equal to. This is greater than, and this is greater or equal, and this is less than, and the last comparison operator is less than or equal to. Similarly, logical operators compared to Boolean expressions and or not. And how and is used, true if both expressions are true. Similarly, or operator is evaluated to true if one of two expression is true. Not operator makes true expression false and false expression to true. इसका मतलब ये हुआ नॉट ऑपरेटर जब किसी ट्रू एक्सप्रेशन पे अप्लाई किया जाएगा तो उसका रिजल्ट वो फॉल्स कर देगा, या नॉट फॉल्स मींस अगर नॉट ऑपरेटर को हम फॉल्स एक्सप्रेशन पे यूज करेंगे तो वो उसके रिजल्ट को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा. Here are few of the examples. The expression 5 greater than 3 is evaluated as true. मतलब 5 3 से बड़ा है. This is true. Similarly, the expression 3 is greater than 5 is evaluated as false. 3 5 से बड़ा नहीं है. And in this example, 5 is greater or equal to 3 and 3 is less or equal to 5 are equivalent Boolean expression, means both are true. 5, you know very well, 5 is greater than or equal to 3. Greater than है 5 greater than or equal to 3, and 3 is less or equal to 5, both of which are evaluated as true. Now let's see the use of and or operator. Here what we are going to discuss, we have created
an identifier or a variable of type bool, and it is assigned a value of the result of this expression. First of all, we will evaluate this expression, and the result of this expression will be assigned to result. Now let's see what will be the result of this uh, logical or boolean expression. First we will evaluate this. 2 is less than 3, it's okay, it is true, it is true. 2 is less than 3 and 3 is less than 4. Here we are using AND operator. First we evaluated 2 is less than 3. Yes, this is true. And similarly, 3 is less than 4. It is also true. When the operands of AND operator are both true, the result will be true. Similarly, here uh, again we declared a variable of type bool, mean it will have uh, one of the two possible values, that is true or false. Now let's see how what will be the value of this variable or identifier result of type bool. First of all, we will evaluate this. 2 is less than 3, this is true, and this operator is used for or. Now let's evaluate this. 1 is equal to 2, this is not true, but or operator is used to provide a result in case of any of the operands of the or operator are true, the result will be true. Here this 2 is less than 3, this is true, it means the value or result assigned to this result variable will be true. As here we are discussing true if one expression is true, कि अगर हमने और ऑपरेटर यूज किया और उसके दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी ऑपरेंड ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट विल बी ट्रू. In case of AND operator, any of the AND operator is false, then the result will be false. The result of AND will be true in only in a situation when both of the operands are true, and in case of OR operator the result will be true in case of any of the operand is true, either left side is true or right side is true or both left and or sides are true, the result will be true. Decision making, uh, throughout all the programming languages, decision making plays a vital role. Without decision making, our programs will look like static programs, and this decision making makes or create or provides us with the dynamism of a program, means certain block of code will be executed depending upon the situation, and in case of different values different sections of a program will be executed. Let's see how decision making works in C sharp. In this figure you can check the your program is flowing and you reach on a condition. If condition is true, then conditional code will be executed, otherwise this conditional code will be totally ignored and you will jump beyond the conditional block or conditional code and execute rest of the program. As here we are stating, an if statement identifies which statements to run based on the value of a boolean expression. Here we are using a boolean expression. As I previously told you,
Boolean expressions results in true or false. If the result of this condition, this Boolean expression is true, then this conditional code will be executed. Otherwise, this conditional code will be totally ignored by the compiler, and you will move or you will skip that conditional block or code and execute the statements after that conditional block. It causes the program flow to be transferred to a specific flow based upon the certain condition is true or false. ये this is what we call decision making. हम क्या करते हैं, कोई एक एक्सप्रेशन जो कि बूलियन एक्सप्रेशन मीन्स के उसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स की सूरत में होगा, उसको हम इवेल्युएट करते हैं। अगर तो वो रिजल्ट ट्रू है तो फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं है, इसका मतलब है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इग्नोर होगा, छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही होंगी वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर फिर इफ स्टेटमेंट आ जाती है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो सिमिलरली वहां भी यही तरीकेकार होगा कि कंडीशन ट्रू है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यही इफ स्टेटमेंट है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। Selection statements are used to select one of a number of possible statements for execution based on the value of some expression। मीन्स कोई एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को हम चेक करेंगे, उसमें अगर उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है तो हम उस एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज वी विल इग्नोर दैट ब्लॉक। C sharp contains the if and switch selection statement. In C sharp, there are two selection statements, that is if and switch statement. अब if statement में कोई वेरिएशन है, if statement किस तरह से काम करती है, let's see if statement. If statement is used to check whether the condition is true or false. If condition is true, perform a function or executes the statement in the if block। मीन्स आपका प्रोग्राम शुरू होगा, स्टेटमेंट्स लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रही होंगी। आप एक जगह पे पहुंचते हैं, वहां पर एक कंडीशन है, आप चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो। ऐसी सिचुएशन में हम डिसीजन मेकिंग यूज करते हुए सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ यूज कर लेंगे। इफ स्टेटमेंट के में दो वेरिएशन है, एक वन वे इफ मतलब सिंपल इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। नो, लेट्स सी व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज टू कंडीशंस, if and else. It checks the two conditions if and else. When the if condition is true, it executes the statement of if condition or if condition block. When the if condition is false, it executes the statements into the else condition block। मतलब अब हमने दो पार्ट कर दिए। अगर if स्टेटमेंट ट्रू है तो if वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर if स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो else वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मीन्स if your marks average is more than 100 more than 90%, then remarks will be excellent, else remarks will be poor depending upon the marks average। Next selection statement is switch statement. And what is switch statement? In switch statement, we have multiple sections, and any of those section will be executed depending upon the fulfillment of the condition. If condition is fulfilled by any of the section, then that section will be executed. It is an alternative to if statement.
Switch statement consists of one or more section. Each section consists of case labels, and if the expression result matches any of the case labels, that case or that block of statement will be executed, and rest of the statements are ignored by the execution of the program. Switch statement results cleaner code than multiple if statements. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी if statements की बजाय अगर हम switch statement यूज करें तो हमारा एक कोड क्लीनर होगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर if conditions are more than 3, then it is usually generally recommended to use switch statement. Let's see the syntax of if statement. If else conditionals, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपना स्टार्ट से प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूशन का फ्लो है। स्टार्ट, इससे पहले समझ लें कि कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और दोनों के एंड पे ईदर इफ इज ट्रू और एल्स इज एग्जीक्यूटेड, द फ्लो विल बी ट्रांसफर टू द rest of the statement in the program. An if statement in C sharp can two forms as the following example shows. आप यहाँ देख सकते हैं, ये कमेंट है इफ स्टेटमेंट विदाउट एन एल्स। इफ कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन statements will be executed, otherwise then statement will be ignored and next statement in the program will be executed. The other part, if else part, it is again similar to if part. If this condition is true, then these statement will be executed, else अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाली स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और दिस इज व्हाट वी कॉल डिसीजन मेकिंग। हियर वी आर मेकिंग ए डिसीजन ऑन दिस कंडीशन। If this condition is true, then these statements will be executed, otherwise these statement will be executed, and after that the rest of the statement will be executed in their own sequence. Now let's see if statements example. Here what we are doing, we declared a variable, the name of that variable is condition and its data type is boolean, means the value assigned या value stored in condition will be true or false. Here we are assigning the value, boolean value, true to condition. Now if true, if condition, if true, then console dot write line, this variable is set to true will be executed. अगर हम यहाँ false assign कर दें तो फिर ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरीके से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अगर कंडीशन वेरिएबल को, इस कंडीशन वेरिएबल को एक ट्रू वैल्यू मिल जाती है तो ये ब्लॉक, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट, here we are again declaring a variable condition of type bool and assigning a value true, and here we are checking if condition is true or false। जैसे मैंने बताया या हमने कंडीशन को ट्रू वैल्यू असाइन कर दी है, तो इफ हेयर we are checking if condition is true, yes condition is true, when condition is true this line of statement or this block of statement will be executed. If we assign value false here, then this part of the program or this block of code will be executed.
This is the if statement used for decision making and to control the flow of control in a program. Switch statement. What is a switch statement? Earlier we discussed switch statement provides multiple sections, and based on the fulfillment of the condition, any of the section will be executed. Switch is a selection statement that chooses a single switch section to execute from a list of candidates based on a pattern match with the match expression. मतलब ये होगा कि हम स्टेटमेंट्स के कुछ ब्लॉक्स बनाकर रख लेंगे और उनको केस लेबल्स असाइन कर देंगे और चेक करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन हम देखेंगे वो एक्सप्रेशन की वैल्यू किस केस लेबल से मैच करती है। जिस केस लेबल से मैच करेगी वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी जितने भी केस लेबल्स होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे। लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं और हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो की प्रेस की गई है कीबोर्ड से वो की उसकी फेस वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज इफ की इज प्रेस्ड ए देन result will be displayed on the screen is A. Similarly, if key B is pressed, what should be, yeah, what must be displayed on the screen? The result displayed on the screen will be B. अब ये decision making क्या होगी? There are 26 alphabets. It means there are 26 possibilities for the alphabets. Or in this situation, we use switch case statement. Let's see the syntax of switch case statement. A switch statement includes one or more switch sections. Each switch section contains one or more case labels, either a case or default. मतलब या तो कोई केस होगा या फिर डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर एक भी केस लेबल आपके एक्सप्रेशन से प्रोवाइडेड वैल्यू से मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। However, no two case labels may contain the same expression. मतलब दो केस लेबल्स के एक्सप्रेशन सेम नहीं हो सकते। Switch statement is often used as an alternative to an if-else construct if a single expression is tested against three or more condition. मिसाल के तौर पे अगर हमने इफ एल्स में डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक्सप्रेशन को टेस्ट करना है और उस एक्सप्रेशन की पॉसिबल वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो सकती हैं तो ऐसी सिचुएशन में इट इज जनरली रिकमेंडेड टू यूज स्विच स्टेटमेंट। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं देखें, या तो आप एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे। टू पॉसिबिलिटीज, या तो पास होंगे या फेल होंगे। बट एज फार एज ग्रेड आर कंसीडर्ड, A1 ग्रेड है, बी ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है, बी माइनस ग्रेड है एंड डी सी एफ ग्रेड है। तो इन दिस सिचुएशन it is recommended to use switch statement because there are three more than three possibilities for the grade. The advantage of using switch over if else statement is the code will look much cleaner and readable with switch statement। कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मेंटेन करना, उसको चेंज करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंडीशन में आपके पास एक वैल्यू के अगेंस्ट तीन पॉसिबिलिटीज या तीन से ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही हों तो इट्स रिकमेंडेड टू यूज स्विच स्टेटमेंट। द डिफॉल्ट केस, अब ये डिफॉल्ट केस क्या है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्विच स्टेटमेंट में लेबल्स होंगे। लेबल्स की पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ अल्फाबेट्स देयर विल बी 26 possibilities, and similarly
in case of lower case letter and upper case letter, there could be 52 possibilities. In case of digits, there are 10 possibilities. In decimal system, that is from 0 to 9, कि कौन सा डिजिट इस वक्त प्रेस हुआ है, तो उस डिजिट की वैल्यू पर बाज औकात हमने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है और कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना। तो इन केस ऑफ डेसिमल सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9। और अगर इन में से कोई 0 टू 9 कोई डिजिट प्रेस नहीं हुआ, कोई और की प्रेस हुई है, तो डिफॉल्ट एक्शन विल बी परफॉर्म्ड। मींस you will be prompted that please press any of the digits. The default case specifies the switch section to execute if the match expression does not match any other case labels. Means कि उन स्विच लेबल्स के अंदर एक डिफॉल्ट लेबल भी होगा कि अगर ऊपर वाले या गिवन केस लेबल्स में से कोई भी मैच नहीं होता, तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। If a default case is not present and the match expression does not match any other case labels, program flow falls through the switch statement। मतलब कोई भी लेबल मैच नहीं कर रहा और there is no default case, तो इन दिस सिचुएशन आप वो पूरे का पूरा स्विच ब्लॉक ऑफ कोड्स विल बी इग्नोर्ड और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। The default case can appear in any order in the switch statement, regardless of its order in the source code. It is always evaluated last after all case labels have been evaluated। कि पहले सारे केस लेबल्स इवेल्युएट होंगे, अगर कोई भी केस लेबल मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर डिफॉल्ट उस सोर्स कोड में अवेलेबल है। लेट्स सी द switch statement flow। Here you can check a value or expression is provided if the value of this expression matches this case label। means कि अगर इस expression की जो भी वैल्यू है वो केस 1 से मैच कर जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और ये केस 2 केस 3 एंड सो ऑन ये सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे और आप एंड स्विच मतलब जहां पे वो स्विच का ब्लॉक खत्म हो रहा होगा उससे अगली स्टेटमेंट को फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस केस से मैच नहीं करता फिर क्या होगा, देखें, नो, फिर इस केस से मैच करने की कोशिश करेंगे सेकंड केस के लेबल से कि सेकंड केस में क्या वैल्यू है। अगर उसमें वैल्यू इससे मैच कर जाएगी तो ये स्टेटमेंट्स 2 या स्टेटमेंट्स 2 का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस स्विच एक्सप्रेशन का रिजल्ट इस केस 1 से भी के लेबल से मैच नहीं करता, फिर इस केस 2 के लेबल से मैच नहीं करता, फिर हम देखेंगे अगर वो केस 3 के लेबल से मैच करता है तो स्टेटमेंट्स 3 का जो ब्लॉक होगा सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फिर हम एंड ऑफ द स्विच उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस स्विच एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस से मैच नहीं करता, किसी भी केस के लेबल से मैच नहीं करता, नो, तो फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और एंड ऑफ स्टेटमेंट मतलब एंड ऑफ स्विच जहां भी स्विच का उस ब्लॉक का स्विच ब्लॉक का एंड हो रहा होगा हम उससे अगली स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे। अब हम पॉसिबिलिटीज यहाँ देखने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। भाई या तो आपने एग्जाम दिया होगा या नहीं दिया होगा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है तो जाहिर है कोई ना कोई ग्रेड आएगा, अब उस ग्रेड की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड हम आपकी मार्कशीट पे रिमार्क्स डिस्प्ले कर सकते हैं
average, above average, below average, excellent, and so on. And the syntax of switch statement is as follows. आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू कलर, ये रिजर्व वर्ड के लिए स्विच, स्विच के बाद स्विच इज फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन, पैरेंथेसिस में हमने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। अब यहाँ से स्विच ब्लॉक शुरू हो जाएगा और यहाँ पर स्विच ब्लॉक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये क्या है, केस, पहला केस और वैल्यू, यहाँ कोई वैल्यू या हम लेबल दे देंगे, मींस कि यहाँ हमने मार्क्स को इवेल्युएट किया या किसी वेरिएबल की सूरत में हमें वो मार्क्स मिल गए और उसकी बेस पे हमने देखा कि वो मार्क्स इन मार्क्स से या इस एवरेज से मैच करते हैं या इसके इक्वल है। उसने कहा यस इक्वल है, तो ये कोड ब्लॉक जो कमेंट्स की सूरत में नजर आ रहा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम यहाँ ब्रेक करेंगे। दिस ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू गेट आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अगर वो इससे मैच नहीं करता तो फिर हम यहाँ मैच करने की कोशिश करेंगे, अगर इससे भी नहीं मैच करता तो फिर यहाँ चेक करेंगे इससे तो नहीं मैच करता। अगर वो किसी से भी नहीं मैच करता तो ये डिफॉल्ट कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टेटमेंट से हम स्विच से हम बाहर आ जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वेरिएबल अगेंस्ट ए सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये सेट ऑफ कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू n, ये क्या है, वेरिएबल्स के, ये कांस्टेंट्स के सेट्स हैं और इस एक्सप्रेशन को इन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड सो ऑन वैल्यू n में से मैच किया जाएगा। द स्विच स्टेटमेंट कंटेन्स मल्टीपल केस लेबल, जैसे केस, दिस इज अगेंस्ट केस लेबल, दिस इज अगेंस्ट थर्ड केस लेबल। द स्विच स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच केस, कि जैसे हमने यहाँ ब्रेक यूज किया अदरवाइज वो फ्लो नेक्स्ट मूव होगा, नेक्स्ट मूव होगा। तो अगर वो इस केस लेबल से मैच कर जाता है तो हम फौरन ही ब्रेक करेंगे और इस स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। द डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट्स व्हेन नो केस सेटिस्फाइज द एक्सप्रेशन। अब देखें इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू है, अगर वो इस वैल्यू 1 से नहीं मिलती, वैल्यू 2 से, वैल्यू 3 से, वैल्यू n से एंड सो ऑन, किसी से भी नहीं मैच करती, तो ऑटोमेटिकली दिस डिफॉल्ट कोड ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। और लास्ट पॉइंट, ए नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट इज अलाउड, कि स्विच के अंदर फर्दर हम किसी भी केस में स्विच अगर यहाँ पे वो मैच कर जाता तो इसके अंदर भी फिर हम फर्दर स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे नेस्टेड इफ हम यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन अगेन वी कैन चेक अनदर कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर क्या किया, फिर देखते हैं कि फिर दूसरी कंडीशन भी ट्रू हुई है या नहीं हुई है। तो इफ के अंदर एक और इफ आ सकती है, सिमिलरली स्विच के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट आ सकती है। वो हम कमिंग डेज में फिर चेक करेंगे कहाँ पॉसिबिलिटी नेस्टेड स्विच की बनती है। स्विच एग्जांपल, अब ये एक प्रोग्राम सी शार्प लैंग्वेज को यूज करते हुए लिखा गया है। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद यूजिंग कीवर्ड, और ये सिस्टम नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और ये इस हमारी इस क्लास का ये ब्लॉक शुरू हो गया और ये ब्लॉक यहाँ जाकर एंड हो रहा है। फिर उसके अंदर हमने एक मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है केस स्विच, और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, 1, और द डाटा टाइप ऑफ दिस केस स्विच इज इंट, और उसको एक इंटीजर वैल्यू 1 असाइन कर दी। अब हम इस 1 की बेस पर फैसला करेंगे कि कौन से ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। ये स्विच इज रिजर्व्ड और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन पास कर दिया। अब उस एक्सप्रेशन में जैसे पहले भी बताया, सिंपल एक्सप्रेशन कैन कंटेन वैल्यूज, तो यहाँ पे हमने उसको एक वैल्यू क्या असाइन कर दी, 1 असाइन कर दी। अब हम केस लेबल्स को चेक करते हैं। लकीली केस लेबल 1, ये देखिए यहाँ पे 1 है फॉलोड बाय कोलन, ये उसका सिंटैक्स है। ये 1 इस केस 1 से मिल जाएगा तो प्रोग्राम क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन और केस 1 लिखेगा
आपकी कंसोल पे, और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और फौरन ही जैसे ही ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल इस एंड पे पहुंचेगा, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स प्रोग्राम में होंगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ये ब्लॉक है स्विच का। इसके बाद हमने यहाँ भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होंगी, अगर हम यहाँ इस केस स्विच को वैल्यू 2 पास कर देते हैं, तो वो यहाँ इस लेबल से मैच करेगा। अब ये वैल्यू 2 इससे मैच नहीं होगी, तो वो इसको इग्नोर करेगा, नेक्स्ट किस पे आ जाएगा, केस लेबल पे आ जाएगा, इससे मैच करेगा। आहा, यहाँ पे ये मैच कर गई, और वो स्क्रीन पे फिर कंसोल आपके जो भी कंसोल स्क्रीन होगी उस पे केस 2 प्रिंट कर देगा, ये लिख देगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वैल्यू 3 असाइन कर देते हैं, तो देखें इस केस में इससे वो मैच करेगा, नहीं मिलता। here the value is 3 and this is 1, फिर वो इससे कंपेयर करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ वैल्यू 3 है और यहाँ वैल्यू 2 है, तो इससे भी नहीं मैच होगा। तो अल्टीमेटली डिफॉल्ट वो जो भी आप कहें, द वैल्यू इज नॉट फ्रॉम 1 एंड 2, के मतलब वैल्यू 1 और 2 में से नहीं है। इसी तरह आप 10 डिजिट्स के भी केस ब्लॉक बना सकते हैं, 0 1 2 3, एंड डिफॉल्ट में आप लिखवा दें कि दिस इज नॉट अ डिजिट। Next, what are the assemblies? These are this is a fourth of our organizational C sharp concept. What is an assembly? An assembly is the primary building block of a .NET framework application. When source code is compiled, a file that is automatically generated by the compiler of every .NET application is called an assembly. मतलब जब कभी भी हम अपने प्रोग्राम को, सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल की कमांड पास कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक फाइल जनरेट करता है, और उस फाइल को हम एक असेंबली कह देते हैं। अब वो फाइल क्या होगी, उस फाइल की दो किस्में होती हैं। द जनरेटेड फाइल कैन बी ईदर एन एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ई एक्स सी और डायनामिक लिंक लाइब्रेरी डॉट डी एल एल। वो फाइल इन दोनों में से, उसकी नेचर आपने उस जो भी प्रोग्राम और या प्रोजेक्ट आप सी शार्प में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी नेचर को देख के जो फाइल जनरेट होगी, या तो वो डॉट ई एक्स सी होगी या डॉट डी एल एल होगी, इनमें से कोई एक होगी। इट इज जनरेटेड ओनली वंस फॉर एन एप्लीकेशन एंड अपॉन ईच subsequent compilation the assembly gets updated। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ असेंबली फाइल एक ही दफा जनरेट होती है, लेकिन अगर आप बार बार अपने प्रोग्राम को चेंज करके कंपाइल करते रहेंगे, तो इस सिमिलरली असेंबली भी अपडेट होती रहेगी। अब देखते हैं, व्हेन द प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, दिस असेंबली MSIL or intermediate code or Microsoft intermediate language code is converted to binary executable code called native code। जब कभी भी आपको उस प्रोग्राम को चलाने की जरूरत होगी, अब आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं, अब आप उसको उस कंपाइल्ड एक्सी फाइल को या असेंबली को एग्जीक्यूट करेंगे, और वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर की मदद से, अगर आपके उस कंप्यूटर या उस मशीन पर डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, तो वो क्या करेगा, उस असेंबली में जो इंटरमीडिएट कोड है उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देगा, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसी एक्सी फाइल को आप डिलीवर कर दें किसी को भी, अगर उसके कंप्यूटर पे विंडो इंस्टॉल्ड है और डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, तो वो MSIL कोड या इंटरमीडिएट कोड कन्वर्ट हो जाएगा मशीन कोड में विद द हेल्प ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, और उस मशीन पे आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ एन असेंबली। नो लेट्स सी
व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन असेंबली। असेंबली के अंदर तीन चार चीजें होती हैं। ए डॉट नेट स्टैटिक असेंबली कैन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। स्टैटिक असेंबली भी होगी, डायनामिक असेंबली भी होंगी। स्टैटिक असेंबली जो एग्जी फाइल आपके पास पड़ी हुई है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो डायनामिक असेंबली कंसीडर की जा रही होती है। असेंबली के अंदर सबसे पहले असेंबली मैनिफेस्ट होता है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट वर्जन ऑफ द असेंबली। असेंबली नेम, strong key name, references to other assembly and other related information पहले नंबर पे ये पड़ी होती है। दूसरे नंबर पे टाइप, मेटा डाटा या टाइप्स या डाटा अबाउट डाटा, डिफाइन ऑल टाइप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ये उस असेंबली में जो जो टाइप्स यूज की गई हैं उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनके कौन से मेथड हैं और वो कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास असेंबली होगी उसमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होगा। पहले भी हमने शुरू में भी हमने देखा, एन असेंबली कंटेन्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड विच इज सिमिलर टू जावा बाइट कोड इन द डॉट नेट लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ metadata, data about data. Metadata enumerates the feature of every type inside the assembly or binary. Next, a set of resources. All other resources like icons, images, graphics, and other text files, these will become the part of an assembly। और ये एक पूरा पैकेज होगा, ये आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर दूसरे कंप्यूटर पर जहां आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क अवेलेबल है, तो ये असेंबली जो इंटरमीडिएट कोड पे मुश्तमिल है उसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो असेंबली कंटेन कर रही होगी। और विद द हेल्प ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नेटिव मशीन कोड और उस कंप्यूटर पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। द समरी व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हमने फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देखने की कोशिश की कि ये क्या करती हैं, किस तरह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रही होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, उनमें उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को चेक किया। फिर हमने डिस्कस किया बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशंस के बाद हमने इफ स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग को डिस्कस किया कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम में एक ब्लॉक ऑफ कोड को कंडीशनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस किया और इन द लास्ट वी डिस्कस्ड assemblies. Dear student, it is hoped in today's lecture you also learn something new. If you are feeling any sort of problem, let me know through email or any other mechanism. Thank you.